رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ پولیس ٹیم نے بھیڑ بکری چوری معاملے میں 3 ملزمان کو گرفتار کرتے ہوئے انجام دیے اور بھی بہترین کام۔ گلبرگہ شہر کی معروف درگاہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین حافظ سید محمد علی حسینی صاحب نے کئی بہترین ولی اللہ کے مزارات پر حاضری دیتے ہوئے انہیں خوبصورت چادریں اور پھولوں کا نذرانہ پیش کیا۔ گلبرگہ شہر میں واقع KBN یونیورسٹی میں میتھس ٹیچر کی شاندار کاوشوں کو سراہتے ہوئے ان کے اعزاز میں منعقد کیا گیا بہترین پروگرام۔ گلبرگہ شہر میں پھر سے خطرناک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں کئی لوگ ہوئے بری طرح سے زخمی۔ غریب لوگوں کو مفت مکانات الاٹ کرنے کے مطالبے کے ساتھ کرناٹکا نیائے کرانتی سنگھ ممبرز نے گلبرگہ نارتھ MLA کنیز فاطمہ کو پیش کی عرضی۔ کرناٹکا ریاست کے SLC اسٹوڈنٹس کے بورڈ ایگزام کی ڈیٹس کی گئی جاری اور ٹائم ٹیبل آ گیا سامنے، جس کے چلتے 21 مارچ 2025 سے SLC بورڈ ایگزام کی ہوگی شروعات۔ پیش کرتے ہیں آج کی خاص اور خصوصی خبریں تفصیل کے ساتھ۔ گلبرگہ شہر کے نرونا پولیس اسٹیشن کی پولیس ٹیم نے بڑے ہی کم وقت میں چوری کے کیس کو سالو کر لیا۔ جی ہاں، گلبرگہ سٹی کے نرونا پولیس اسٹیشن میں حال ہی میں بھیڑ بکریاں چوری ہونے کے سلسلے میں کیس کو درج کیا گیا تھا، جس کے بعد پولیس ٹیم پھرتی میں آئی اور اس کیس میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر کے چوروں کے قبضے سے 6 بکریاں، 1 آٹو، 4 موٹر سائیکل برآمد کرتے ہوئے 5,20,000 روپے مالیت کے اثاثے ضبط کر کے ان چوروں کو جوڈیشل کسٹڈی میں بھیج دیا گیا، جو کہ بڑا ہی اچھا کام رہا۔ جیسے کہ ناظرین کو پتہ ہی ہے کہ پورے گلبرگہ ضلع میں روڈ سیفٹی اور ٹریفک رولز کو لے کر شاندار اور بہترین مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے چلتے گلبرگہ شہر میں کل اتوار سے ہی ٹریفک رولز کی پابندی نہ کرنے والوں پر جرمانہ عائد کرتے ہوئے ان پر سخت ایکشن لینے کی بات کہی گئی۔ لہٰذا اسی کے چلتے بتا دیا جائے کہ گلبرگہ شہر کے ٹریفک سب ڈویژن کے افسران کی طرف سے سٹی کے مین چوک سرکل پر اسکول اور کالج کے طلبہ و طالبات عوام لوگوں کے لیے ٹریفک قوانین کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے بہترین پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں ٹریفک پولیس نے عوام کو ٹریفک رولز ریگولیشنز کے تحت اہم جانکاریاں فراہم کی اور پچھلے ہفتے سے کافی زیادہ ایکٹیولی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے گلبرگہ پولیس کمشنر SD شرنپ IPS نے سب اربن پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا اور وہاں پر موجود زیر تفتیش مقدمات کا جائزہ لیتے ہوئے پولیس ٹیم کو ان پینڈنگ کیسز کو جلد سے جلد سالو کرنے کی انہوں نے ہدایت دی۔ ساتھ ہی کمشنر صاحب نے CEN پولیس اسٹیشن اور چوک پولیس اسٹیشن کا بھی دورہ کرتے ہوئے پولیس عملے کی ڈیوٹی کے معمولات، تھانے کے اطراف کے حدود اور زیر تفتیش مقدمات کا بھی جائزہ لیا۔ گلبرگہ شہر کی معروف اور نامچین درگاہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے 24ویں سجادہ نشین جناب حافظ سید محمد علی حسینی صاحب اور ان کے بھائی جناب محمد مصطفیٰ حسینی صاحب نے حال ہی میں درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری دیتے ہوئے اس خوبصورت درگاہ کی زیارت کی۔ حضرت کی مزار پر خوبصورت چادر چڑھاتے ہوئے پھولوں کا نذرانہ پیش کیا گیا اور یہاں اس موقع پر ان کے ساتھ حضرت سید محمد نظامی صاحب، جانشین حضرت حسن ثانی نظامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جناب فرید نظامی صاحب اور جناب خورشید نظامی صاحب موجود دکھائی دیے۔ اس درگاہ میں حافظ صاحب اور ان کے بھائی کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور ان کے سر پر اعزاز کے طور پر ہرا کپڑا باندھتے ہوئے ان کی دستار بندی بھی کی گئی اور پھر حسینی برادرز نے درگاہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار خاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی اور وہاں پر بھی چادر اور پھولوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے جناب نے کافی دعائیں کی اور آگے کے لیے روانہ ہوئے۔ مزید ناظرین کو یہ بھی اطلاع دے دی جائے کہ گلبرگہ شہر میں واقع شالیمار فنکشن ہال میں کل اتوار کے دن سیرت النبی اسٹڈی اینڈ ریسرچ سینٹر کرناٹکا، آل انڈیا ملی کونسل اور مرکزی سیرت کمیٹی گلبرگہ کی جانب سے جلسہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پرائز ڈسٹریبیوشن اور فیلیسیٹیشن پروگرام منعقد کیا گیا۔
जहां पर मेहमान खुसूसी के तौर पर हाफिज मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब और उनके भाई जनाब सैयद मुस्तफ़ा अली हुसैनी साहब ने शिरकत फरमाई। इस प्रोग्राम में दोनों भाइयों की शॉलपोशी और गुलपोशी करते हुए उन्हें एजाज से नवाजा गया और यहाँ कसीर तादाद में इल्मी दीनी बाकमाल शख्सियत का हुजूम देखने को मिला। गुलबर्गा शहर में कायम ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी, जो कि कई सालों से तालीम एजुकेशन की लाइन से बड़ी अच्छी खिदमत सभी को फराहम कर रही है और यहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स को हर फील्ड में माहिर अंदाज के साथ नॉलेज को पहुँचाती है। ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस ऑन प्योर एंड अप्लाइड साइंसेज जैसे बेहतरीन अक़दामात के जरिए भी ये बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे टीचर्स असातिज़ा की तरक्की को भी फ़रोग़ दिया जाता है। और KBN यूनिवर्सिटी में शोबा रियाजी के सरबराह डॉक्टर सना एजाज को पोस्टर प्रेजेंटेशन में उनकी शानदार कारकर्दगी के लिए तस्लीम किया गया, जो कि तहकीक और अप्लाइड साइंसेज में हुदूद को आगे बढ़ाने वाली तालीमी कोशिशों के लिए यूनिवर्सिटी की हिमायत की अक्कासी करता है। साथ ही मुमताज बैनुल अक़वामी स्कॉलर्स और फैकल्टी के फ़आल ताउन के साथ इस तकरीब ने तालीम के मुस्तक़बिल को तश्कील देने और तालीमी इख्तिरा के कल्चर को फ़रोग़ देने में KBN यूनिवर्सिटी के किरदार को उजागर किया। गुलबर्गा जिला में आए दिन कई सारे रोड एक्सीडेंट्स और हादसात की इत्तला हमें सुनने को मिलती है, जिसके चलते अवाम को कई बार गाड़ियों के नुकसानात के साथ साथ अपनी जानों से भी हाथ धोना पड़ता है। लेकिन अवाम फिर भी अपनी लापरवाही, रैश ड्राइविंग और गफलत के चलते एक्सीडेंट्स करते ही रहती है। एक्सीडेंट्स के वाकयात सुनने को मिलते ही रहते हैं। लिहाजा इसी खबर के चलते बता दिया जाए कि गुलबर्गा जिला में वाक़ जेवरगी तालुका के यड्रामी गांव के करीब KSRTC बस और JCB ट्रैक्टर के बीच ज़बरदस्त टक्कर होने का दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया, जिसमें देखा जा सकता है कि बस पूरी तरह से टूटकर तहस नहस हो चुकी है और बस ड्राइवर समेत बस में सफ़र करने वाले मुसाफिर बड़ी ही बुरी तरह से जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर जेवरगी तालुका हॉस्पिटल और गुलबर्गा जनरल हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया। इस हादसे की इत्तला मिलते ही यड्रामी गांव के पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम मुकाम पर पहुंची और इस केस को यड्रामी पुलिस स्टेशन में दर्ज करते हुए इसकी तफ्तीश की जा रही है। इस हादसे की अच्छी बात यह रही कि इतना खतरनाक और जानलेवा हादसा होने के बावजूद भी किसी की भी जान नहीं गई, कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, जो कि काफी सुकून पहुंचाने वाली खबर रही। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने फिर से बड़े ही अच्छे अंदाज से अपने खित्ते की तरक्की के लिए कदम बढ़ाया है। जी हाँ, जैसे कि नाजरीन ने वो मशहूर कहावत तो सुनी ही होगी कि आज के बच्चे कल के जिम्मेदार शहरी हैं। एक बालिग मुआशरे की तामीर के लिए बच्चों को आइन के अता कुर्दा हुकूक, इंतजामी उमूर, जमहूरी निज़ाम में लोगों को हासिल इख्तियारात के बारे में आगाह करना बेहद ज़रूरी है। लिहाजा इस बात की तरफ इशारा करते हुए डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने कहा कि रियासत भर की ग्राम पंचायतों को बच्चों की ग्राम सभा मुनक्किद करने की हिदायत दी गई थी, जिसका अच्छा रद्द-ए-अमल देखने को मिला और इसके बेहतरीन नताइज बरामद हुए। भी कन्नड़ा, मांड्या, बैंगलोर देहाती और कोप्पड़ अजला की ग्राम पंचायतों में मुनक्किदा खुसूसी गाँव के इजलासों में बच्चों ने जोश खरोश से हिस्सा लिया, जो कि एक अच्छी तरक्की की अलामत है। लिहाजा एक अच्छी पेशरफ्त साबित हुई कि बच्चों ने कोप्पड़ अजला के गाँव की पंचायतों के जरिए मुनक्किदा खुसूसी गाँव के इजलासों में बहुत ही जोश खरोश से हिस्सा लिया। खरगे ने कहा कि उन्हें पुख्ता यकीन है कि गाँव की ये मुलाकातें बच्चों में शख्सियत और समाजी शऊर की नशोनुमा में बेहतरीन मददगार साबित होगी। गुलबर्गा नॉर्थ MLA कनीस फातिमा के घर पर पहुंचकर 11 जनवरी के दिन कर्नाटका न्याय क्रांति संघ मेंबर्स ने एक याददाश्त अर्जी पेश करते हुए MLA साहिबा से कोई भी गवर्नमेंट फंड के जरिए गरीब लोगों को मुफ्त मकानात देने की रिक्वेस्ट की, ताकि गरीब मजलूम बेघर लोगों को सर छुपाने के लिए छत मिल जाए। जी हाँ, कर्नाटका न्याय क्रांति संघ के मेंबर्स ने गुलबर्गा नॉर्थ MLA कनीस फातिमा और फराजुल इस्लाम को एक अर्जी पेश करते हुए ये डिमांड की, मुतालबा किया कि कोई भी गवर्नमेंट फंड के जरिए से बेघर, मजलूम और परेशान अवाम को मुफ्त मकानात तकसीम किए जाएं, ताकि ये गरीब लोगों को रहने के लिए एक महफूज छत मिल जाए। बता दिया जाए कि कल्याण कर्नाटका अध्यक्ष बंदा नवाज नशीसर की सदारत में कनीस फातिमा को ये अर्जी पेश की गई और इस मौके पर गुलबर्गा महिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जमीला बेगम, यादगीर डिस्ट्रिक्ट महिला प्रेसिडेंट शमशाद खानम,
गुलबर्गा कर्नाटक न्याय क्रांति महिला संघ के वाइस प्रेसिडेंट आरती मैडम, सेक्रेटरी नाहिद तबस्सुम, जॉइंट सेक्रेटरी उज़मा बेगम और कैशियर सक्कुबाई, बंदा नवाज, नशीर सर, शरीफुद्दीन सर, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ और भी दीगर खवातीन की मौजूदगी में एमएलए कनीस फातिमा और फराजुल इस्लाम साहब की शॉलपोशी और गुलपोशी करते हुए ये अर्जी उन्हें पेश की गई। कर्नाटक रियासत में मौजूद 10th स्टैंडर्ड के तमाम स्टूडेंट्स को अहम खबर और इत्तला पहुंचाई जाती है कि एसएलसी बोर्ड एग्जाम 2025 की डेट्स आ चुकी हैं। टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, जिसके मद्देनजर 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई तालीम पर पूरी तवज्जो देनी होगी। साथ ही पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई पर बच्चों को ध्यान देना होगा। बता दिया जाए कि एसएलसी बोर्ड एग्जाम 21 मार्च 2025 से शुरू होंगे, जिसमें पहला पेपर फर्स्ट लैंग्वेज रखा गया है, जिसमें आपके चुने गए लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश, उर्दू, कन्नड़ा हो सकते हैं। और इस इम्तिहान के लिए आपका वक्त सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 1:15 तक रहेगा, जो कि ड्यूरेशन 3 घंटा होगा और 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। नेक्स्ट 2 डेज छुट्टी हॉलीडेज रहेगी, जिसमें आप अपने दूसरे पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। फिर 24 मार्च 2025 मंडे के दिन आपका कोर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स या सोशियोलॉजी रहेगा, जो कि 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसी के तलबा और तालिबात को बता दिया जाए कि नेक्स्ट 26 मार्च 2025 को सेकेंड लैंग्वेज एग्जाम रहेगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा, जो कि 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। फिर 2 दिन बाद डायरेक्टली 29 मार्च 2025 को कोर सब्जेक्ट सोशल साइंस का पेपर रहेगा। इसी तरह से आपके आगे बचे हुए पेपर्स के एग्जाम रहेंगे और 4 अप्रैल को आपका आखिरी पेपर रहेगा। लिहाजा एसएलसी के तमाम स्टूडेंट्स को ये जानकारी देते हुए कहा जाता है कि आप बच्चे हमारा आने वाला बेहतर कल हैं और ये आने वाला कल आपके लिए बेहतर से ज्यादा बेहतरीन साबित हो। इसीलिए आपको आज से ही दिल लगाकर अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी होगी, ताकि आप अपने सभी एग्जाम पेपर्स को अच्छे से देकर शानदार मार्क्स परसेंटेज के साथ कामयाबी हासिल करें, अपने घर, खानदान और स्टेट का नाम रोशन करें। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।